are talking about the technology, we are talking about the technical parts. It was one of the special requests from Kapil Kapoor Sahab, our Delhi chapter president as well. Then let's even talk about business. Business भी कैसे बढ़ा है? Technically तो चलो समझ गए. So sir, we have actually respected your vision and we have got a special person today. So MSME represents almost 30% of the industry in India. So that's a big number, and we actually seek knowledge for MSMEs. We always seek knowledge from the Google Insights. We tend to ask many people when we don't get the accurate answers. So we have got that answer for you today. We have Mr. Gagandeep Singh ji, who will be presenting on MSME. Please may I welcome Shri Gagandeep ji for knowledge pack session with regards to MSME segment. Please big round of applause for Gagandeep Singh ji. This is a very special session, Gagandeep ji. Thank you very much for being here and enlightening all of us. Thank you. Thank you so much. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Sakhi ji for having me over here. We happened to meet last week in one of the sessions in Mumbai, and she requested us to be present over here. I'm very happy to be here because technology is the thing, right? And I guess I've been hearing sitting over here since morning, about different product innovations and the rating agency that we're trying to work on this as well, because I myself have a history. I was working with CRISIL earlier, so I understand a little bit portion about the rating agency out there as well. So today my topic is very different. It's not related to what you have been hearing since morning. A little different, so that at least it helps you to know that once you grow, where all we can foresee ourselves in the future as well. And for every business, the basic need is raising funds. So it becomes very difficult for any particular promoter or any particular entrepreneur to have a consistent ongoing funding in the company, right? So it takes a lot of efforts, time, and experience to build on that, right? As mentioned, I represent the National Stock Exchange of India. I'm an employee out there, and I've been handling the Western Regional Office for almost last 10 years and supporting growing SMEs to list on the capital market. Just wanted to know how many of you already know that एक ऐसा platform है जहाँ पे growing SMEs अपने company का stock list करा सकती हैं. So got 3, 4 this side. So I guess correct. So it's quite surprising as well, but there has been a platform since 2012 which is helping growing MSMEs to list on the stock exchange. And if I am not wrong, probably the first company to list from the city of Pune was Midcon Consultancy, if I'm not wrong, right? Dr. Pradeep Babdekar, I still remember his name because he's super animated though. He's been there, but he is from that consultancy background, right? And of course, post that, we have had many companies who have listed from the Pune city as well. I've got the numbers with me. I'll just run through the 7-8 page slides that I have so that everyone has an idea of what the platform is all about, and in-depth discussion we can do later on, right? So this is the name of the platform. It is NSE Emerge. It is a separate segment itself within the exchange. So your company will get listed, and also the stocks will get traded. So this is the platform for that. Please mind, this is not a startup platform. It is majorly for companies who are already established, doing their businesses, getting revenue from their core operations and sustaining it, right? And then they want to take the next leap forward. That is when we are looking for the companies to list on the stock market. A small glimpse of where we are standing today. As on 30th of September, I have captured this data for you. 555 companies have listed on a pan-India basis on the NSE Emerge platform. Collectively, they have raised almost 14,000 crores on the platform so far, which averages out to be about 25 crore of an IPO size when you divide this number by the number of companies listed. The current market capitalization of these companies listed today
is more than 2 lakh crore rupees. Now imagine if this particular platform was not there, right? All these companies may not have gotten a chance to list on the stock market, forget adding to the market capitalization growth of the economy as a whole together, right? Very interesting point if you see at the bottom out there, I've also mentioned something called as companies migrated to main board. So as I mentioned in the beginning, it is a separate segment within the exchange. All the larger companies which are listed on the stock market are generally called that they are trading on the main board platform, right? So all the Tata companies, Reliance companies, whichever are listed companies get traded on the main board platform. That's a synonym given out there. So we call this as a NSE Emerge platform. So from this platform, the companies also get an opportunity to migrate to the main board as well and start getting traded next to the larger portions out there also, right? So out of these 555, 140 companies have already migrated to the main board. Of course, there are criteria involved out there, right, which I will dwell in the next slide. Just before going that, this segment is also again regulated by SEBI. If people who are aware about the capital market, एक IPO लाने के लिए बेसिक चीज़ क्या करनी पड़ती है, कंपनी का एक छोटा सा ग्रंथ बनाना पड़ता है, which is nothing but a कुंडली of the company. Since inception of the business, now it can be a first generation entrepreneur or a third generation entrepreneur. Since inception of the company till today, आपने जो भी बिजनेस में किया है वो सब उस पर्टिकुलर एक छोटी सी बुकलेट के अंदर, विच इज अराउंड 300 to 400 ऑड पेजेस, जो आप मार्केट में सुनते होंगे, उसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. सो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोमोटर्स का प्रोफाइल, आपका ड्यू डिलिजेंस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड चेक के ऊपर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सो एंड सो फोर्थ अबाउट द इंडस्ट्री, एवरीथिंग गेट्स analyzed and due diligence done on that, and then it gets compiled. वो जो offer document है is submitted to the stock exchanges for review. Main board पे वो submission SEBI के पास होता है, which is our board, right? So for the stock market, SEBI is the board. For the banks, RBI is the board, right? Similar to other industries. सो आप सेबी को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, सेबी उसको रिव्यू करता है, 5-6 महीने लगा देता है इन टर्म्स ऑफ द एंटायर प्रोसेस. उसके बाद एक्सचेंजेस के पास आता है, एक्सचेंज उसको वेट करते हैं, आपको अप्रूवल मिलता है. उसके बाद आप IPO ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर पब्लिक जनरली इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है, राइट, जब IPO ओपन होता है. इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट नहीं होता है. सेबी हैज़ गिवन द पावर्स टू द एक्सचेंजेस. 2 ही एक्सचेंज है इंडिया में जो एज ऑफ नाउ अलाउ कर रही हैं लिस्टिंग ऑन द SME प्लेटफॉर्म. वन इज़ NSE, अदर इज़ BSE. NSE का नाम है NSE Emerge प्लेटफॉर्म का, BSE प्लेटफॉर्म का नाम है BSE SME. सो यू कैन चूज विच एवर यू वांट टू, सो दैट एटलीस्ट इट हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो ऑन द फर्दर स्कोप. ट्रेडिंग टर्मिनल्स, ट्रेडिंग मेंबर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स रिमेन्स द सेम. तो बेसिकली जो मशीनरी है विच इज़ नीडेड for getting the stock traded remains the same for main board and SME as equivalent. There is no changes out there. एक छोटा सा टेक्निकल चेंज है. आप लोगों में कितने लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं? परफेक्ट, चलो गुड, दैट नंबर इज आउट देयर. सो आप जब ट्रेड करते होंगे, आप जब अपने मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस में, आप किसी भी पोर्टल के थ्रू आप करते होंगे, तो आपको EQ सीरीज दिखती होगी हमेशा, राइट? दैट EQ स्टैंड्स फॉर इक्विटी. वो मेन बोर्ड IPO का डिनोमिनेशन है वहाँ पे. तो कोई भी स्टॉक अगर मेन बोर्ड पे ट्रेड कर रहा है वो EQ सीरीज़ में करेगा. जो SME स्टॉक है, आप आज भी चेक कर सकते हो, उस ड्रॉप डाउन के अंदर EQ की जगह SM सीरीज़ कीजिएगा, आपको SME स्टॉक्स मिल जाएंगे. ये 555 में से 140 माइनस वो स्टॉक आपको वहाँ मिल जाएंगे ट्रेड करते हुए. दैट इज़ द ओनली डिफरेंशिएशन. तो जब आप माइग्रेट करते हैं SME से मेन बोर्ड पे, सिर्फ वो सीक्वेंस को चेंज करके SM से EQ कर दिया जाता है. So it's a very seamless process. Everybody I'm sure knows NSE is one of the youngest exchanges in the world today, right? But still has been number one since the first year of inception. It's been on the world records for the last 4 to 5 years consecutively, being number one in the world in terms of number of stocks getting traded on a regular basis, right? So there have been many parameters which the exchange has achieved over a lot of period of time, and of course technology has played a lot रोल इन दैट. ये छोटा सा एक एग्जांपल था जस्ट टू सी कि कहाँ पे फिट किया जाता है. आप जैसे मैंने बोलता है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोइंग कंपनी. सो वी हैव पोस्टेड इट राइट नेक्स्ट टू द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स. तो बेसिकली
जब एक प्रोमोटर रेडी है अपनी कंपनी को ग्रोथ स्टेज पे लेके जाने के लिए, एंड वहाँ पे अगर वो एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास रेडी है अपनी कंपनी का स्टॉक बेचने के लिए, दैट मीन्स मेंटली समवेयर द प्रोमोटर इज प्रिपेयर टू लेट गो ऑफ द इक्विटी. अदरवाइज एसएमई से हम देखते हैं जनरली प्रोमोटर्स ट्रीट देयर कंपनी एज देयर ओन बेबी. नोबडी वांट्स टू पार्ट अवे और हैविंग शेयर्ड ओनरशिप ऑफ द कंपनी. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो अब अगर आप एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं मेंटली यू आर ओके टू लेट गो ऑफ इक्विटी. हेंस वी हैव प्लेस्ड इट आउट देयर, राइट. एंड ऑफ कोर्स दैट इज द राइट स्टेज, एंड आफ्टर दैट यू कैन माइग्रेट टू द मेन बोर्ड एज वेल. ये एक क्राइटेरिया स्टेज है विच आई एम श्योर एवरीबडी शुड नो. कंपनी कैसे लिस्ट की जाती है, राइट. तो उसमें है सबसे पहला हु कैन लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट. एक ही क्राइटेरिया सेबी ने दिया है विच स्टेट्स अ कंपनी हुज पोस्ट इशू पेड कैपिटल इज लेस देन 25 करोड़ रुपीज एट फेस वैल्यू. आप सबकी बैलेंस शीट के अंदर जो एक पेड अप कैपिटल का एक वर्ड आता है, अगर आप उसको चेक करेंगे, अगर वो 25 करोड़ से कम है फेस वैल्यू पे, आपकी कंपनी एलिजिबल है आईपीओ लाने के लिए. दैट्स इट, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया, देयर इज नो अदर क्राइटेरिया. बट हैविंग सेड दैट, हम सबको इमीडिएटली तो अलाउ नहीं कर सकते लिस्ट करने के लिए. सो एज एन एक्सचेंज वी हैव केप्ट सम फिल्टर्स आउट देयर विच आर ऑफ कोर्स नॉन नेगोशिएबल. सो वो नीचे वाले क्राइटेरियाज है हमारे पास, जहाँ पे हम एटलीस्ट चेक करते हैं कि कंपनी का एग्जिस्टेंस लास्ट 3 साल से होना चाहिए. 3 साल से जो वो कोर ऑपरेशन है वो रेवेन्यू विड्रॉ करना चाहिए. तो पिछले 3 साल में कोई भी 2 साल आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए. वी आर नॉट डिफाइनिंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू शुड बी मेकिंग. That is for the investors to judge whether they want to invest in the company or not. See, again, we are the platform providers. We don't get you the investors. Investors will come to you once you put your offer document on the website, right? So 3 साल की ऑपरेशनल हिस्ट्री, पिछले 3 में से कोई से भी 2 साल प्रॉफिटेबल. ये क्यों रखा है? बिकॉज कोविड से पहले द नॉर्म वाज कि लास्ट 2 साल प्रॉफिटेबल चाहिए, बट पोस्ट कोविड अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. उसके बाद से अभी तक हमने इसको रिव्यू नहीं किया है, सो इट्स रिमेन्स द सेम. थर्ड पॉइंट है नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए ड्यू टू एनी पास एक्सीजेंसी इन द बिजनेस. अगर नेटवर्थ नेगेटिव है और आपकी नेटवर्थ इरोड होती जा रही है ईयर ऑन ईयर, इज एब्सोल्युटली फाइन, वी विल नॉट पीनलाइज यू फॉर दैट. बट जिस बैलेंस शीट नंबर से आप डॉक्यूमेंट फाइल करने वाले हो, वो बैलेंस शीट के अंदर आपका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट इज नीडेड आउट देयर. लास्ट क्राइटेरिया हमने जस्ट अभी 1 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया है, विच इज बेसिकली फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री. अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखते हैं अपने आप को, नॉट एज अ प्रोमोटर, तो आप कंपनी में ये देखेंगे ना कि कंपनी में कितना कैश बचा है जो मेरे लिए एज ए इक्विटी शेयर होल्डर मुझे मिल सकता है. करेक्ट? वी ऑल नो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आपका किसी कंपनी के एसेट पे कोई राइट नहीं होता है. टुडे इफ यू आर ओनिंग 100 करोड़ का अगर रिलायंस का शेयर, यू कैन गो एंड टेल मिस्टर अंबानी कि अपने एंटीला में मुझे 100 स्क्वायर फीट जगह दे दो. ट्रू? Why? Because as an equity shareholder, you don't have the right over the asset of the promoter. इसलिए कंपनी के प्रोमोटर्स का asset छूटता नहीं कभी हाथ से. You own the equity का portion. So as a promoter of a company, आप 100% equity own करते हो. You are different than the company. Accounting principle का एक standard है, going concern, which states the promoter is different than the company. प्रोमोटर कल नहीं रहे, बिजनेस रहेगा तो लेगेसी बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिकली. सो यू ओन 100% ऑफ योर शेयर्स. या तो आप 25% शेयर और अपना फ्रेश इशू कर सकते हो, या आप अपना खुद का शेयर डाइल्यूट करके 25% पोर्शन किसी और को दे सकते हो. 2 सिनेरियो से आप कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो. वन इज IPO विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके अंदर पैसा कंपनी में आता है. सेकेंड इज OFS, ऑफर फॉर सेल. प्रोमोटर खुद का इक्विटी ऑफर कर रहा है एक थर्ड पार्टी को बेच के, तो आप फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो. OFS के अंदर प्रोमोटर के बैंक अकाउंट में पैसा आता है. IPO के अंदर कंपनी के अकाउंट में पैसा आता है. दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट. सो बहुत लोग इन चीज़ों को सोच समझ के इसका मिश्रण करके भी IPO लेके आते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. जनरली जिसका पेड अप कैपिटल ज़्यादा होता है, लाइक विच इज अराउंड 18-20 और जैसे बहुत हैवी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है, वो एक IPO और OFS का मिक्सचर लेके आ सकते हैं. But majorly companies will always prefer doing an IPO, which is issuing fresh equity to the shareholders. These are the criteria that we have. ये एक उसका फॉर्मूला था, not relevant right now. ये एक छोटा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. कितने लोगों को डर लगता है स्टॉक मार्केट में जाने से, अपनी खुद की कंपनी लेके जाने से? प्लान कर रहे हैं, तो सबको क्या लगता है? फैंटास्टिक सर. अभी ना कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है. अगेन आई एम नॉट अ सेलिंग एजेंट, आई एम ओनली हियर फॉर गेटिंग अवेयरनेस, राइट. मुझे खुद को अच्छा लगेगा बिकॉज आई पर्सनली हैंडल महाराष्ट्र सिंस लास्ट 10 ईयर्स. तो मुझे खुद को अच्छा लगता है कंपनी यहाँ पे लिस्ट करती है. आपको एक चीज़ शायद मैं दिखाना भूल गया, आपने शायद नोटिस किया रहेगा, मैंने नीचे महाराष्ट्र के फिगर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे.
इन 555 कंपनीज में से 155 कंपनीज महाराष्ट्र से ही लिस्टेड हैं अलोन, एंड वी आर जस्ट बिहाइंड इट फॉर ऑब्वियस रीजंस. एनी गेसेस? एब्सोल्युटली राइट. बट बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन शायद वो भी शायद अराउंड 160 टच नहीं किया उन्होंने भी अभी तक. सो वी आर ऑलमोस्ट एट पार विद देम, राइट. सो दैट्स वन थिंग. एंड SME पोर्टल जो हमारा है, राइट, द MSME पोर्टल, उस पे 1,17,000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड, एंड दीज आर नॉट SME कंपनी, दीज आर ओनली मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नॉट दी माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो अगर वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 155 लिस्टेड है, दैट मीन्स कितना स्कोप है हमारे पास, राइट, कंपनी को लिस्ट कराने का स्टॉक मार्केट पे. और वो 14,000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ तो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनीज ने ही रेज किया है यहाँ पे, राइट. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, दैट वी आर देयर, वी हैव बीन हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग कंपनीज टू लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट. पूना इज़ लाइक माई सेकेंड होम. बहुत आया हूँ मैं पूना लास्ट 10 सालों के अंदर, विद योर ICAI इंस्टीट्यूट, ICSI, विद WA इंस्टीट्यूट्स, विद अदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस. बहुत सेशंस किए हैं, बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स भी किए हैं. रिसेंटली हमारे यहाँ पे पुणे में एक डिफेंस एक्सपो हुआ था 3 दिन का, फर्स्ट एवर डिफेंस एक्सपो, राइट. वी वर देयर एज वेल, वी डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ सेशंस आउट देयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने शायद वो फेब मंथ में किया था, एंड उसी एक्सपो से एक कंपनी ऑलरेडी लिस्ट भी कर चुकी है पुणे से, विच इज़ इफ़ आई एम नॉट, द नेम इज़ रैपिड वॉल्स. वो डिफेंस के लिए वॉल्स क्रिएट करती हैं फॉर हाई प्रेशर इक्विपमेंट्स को मैनेज करने के लिए, राइट. जस्ट 2 more minutes, आई गेस आई वुड बी डन. हम बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की. ऐसा क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको एज अ लिस्टेड कंपनी जो आप आज ऑलरेडी नहीं कर रहे हो? आपको पता है आपकी बैलेंस शीट्स प्राइवेट नहीं है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है. एनीबडी हु थिंक्स आपकी बैलेंस शीट इज प्राइवेट टू यू, इट्स नॉट अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन. ROC में 100-150 रुपये मिल जाएगी, राइट. सो योर कॉम्पिटिशन नोज मे बी मच more about your company than you may also know about your own company, right. So these are the facts, because I have discussed this with one-on-one with a lot of promoters who are very gung-ho about their own businesses, right. The only thing जो आपको डिफरेंट करनी है, आपकी जो बैलेंस शीट बनती है आप साल में एक बार बनाते हो. एज अ लिस्टेड कंपनी आपको यहाँ पे 6 महीने में एक बार बनानी है. मेन बोर्ड कंपनीज को हर क्वार्टर में बनानी पड़ती है, आपको सिर्फ 6 महीने में. दिस इज़ वन एडिशनल थिंग जो आपको करना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटी. सेकेंड एडिशनल चीज़, आज आपकी कंपनी के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो पेरोल पे शायद नहीं होगा, बिकॉज ऑफ देयर इज नो नीड फॉर इट. बट एज अ लिस्टेड कंपनी यू विल हैव टू एम्प्लॉय अ कंपनी सेक्रेटरी ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी, विच विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द कंप्लायंस ऑफिसर, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज कंप्लायंस इज नीडेड एंड गवर्नेंस में कोई लीवे नहीं दिया जाता, राइट. सो ये बेसिक चीज़ें हैं. मिनिमम डाइल्यूशन प्रमोटर को अगर IPO लेके आना 25% इज मैंडेटरी, राइट, नथिंग लेस देन दैट. दिस इज अ सेबी रिक्वायरमेंट. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और रखा गया है 100% अंडर राइटिंग का. आप अगर अपनी कंपनी का लेस से 50 करोड़ का IPO अगर सोचते हो लाने के लिए, तो जो मर्चेंट बैंकर्स हैं जो ये सारी एक्टिविटी करने वाला है आप लोगों के लिए, ही विल हैव टू अंडर राइट योर IPO 100%. दैट मीन्स अगर लास्ट डे IPO 3 दिन के लिए खुलता है, मिनिमम मैक्सिमम 10 दिन के लिए खुलता है, राइट. लेट्स से 3 दिन का IPO खुला है, 3rd डे तक 3:30 बजे तक सिर्फ 25 करोड़ का ही आपका एप्लीकेशंस आया, तो जो बचा वो 25 करोड़ है ना, वो मर्चेंट बैंक को अपने खुद के पॉकेट से डालना पड़ेगा, उसको अरेंज करके लाके देना पड़ेगा. दिस इज व्हाट सेबी वांटेड टू सपोर्ट दी MSMEs, कि अगर आप फंडिंग लेने के लिए आ रहे हो, आपकी पूरी एक्टिविटी वेस्ट ना जाए. मेन बोर्ड पे एक्टिविटी वेस्ट हो जाती है अगर IPO फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है, तो कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर. सो दे डिडंट वांट दिस टू हैपन ओवर हियर. दैट इज रीजन दे हैव केप्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ 100% अंडर राइटिंग एंड ऑल्सो मार्केट मेकिंग. 3 साल के लिए वंस द कंपनी गेट्स लिस्टेड, मिनिमम लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक मार्केट मेकर विच इज ऑल्सो अ स्टॉक ब्रोकर विल बी प्रेजेंट ऑन योर बिहाफ टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स. छोटा सा एग्जांपल बिफोर आई फिनिश, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. आप जब मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म कंपनीज पे ट्रेड करते हैं, IPO के टाइम पे भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप एक सिंगल शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, राइट, सेकेंडरी मार्केट में, राइट. IPO में तो हम श्योर लॉट होता है 12,000 से लेकर 17,000 के बीच का. SME प्लेटफॉर्म पे आप सिंगल शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हो, आपका मिनिमम लॉट साइज होता है यहाँ पे. तो अगर 100 रुपये का शेयर है, 1000 शेयर का एक लॉट बनेगा, तो 1000 शेयर्स इंटू 100 बिकम्स 1 लाख रुपी, जो यहाँ लास्ट साइन में लिखा हुआ है नीचे. मिनिमम एप्लीकेशन इज 1 लाख रुपी. ये IPO के टाइम पे भी है और सेकेंडरी मार्केट में भी है. तो कईयों के लिए 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, कईयों के लिए नहीं है. बट अगर किसी को आज आपने कंपनी लिस्ट कराई, आप एज अ प्रोमोटर 75% होल्ड करते हो, 25% पब्लिक होल्ड करती है. बट लेट्स से सखी जी ने इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल,
बट आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लिस्टिंग होने के इमीडिएट बाद शी वांट्स टू एग्जिट द कंपनी फॉर सम पर्सनल रीजंस। अब आप एज अ प्रमोटर नहीं खरीद सकते क्योंकि आपने 25% मार्केट में दिया हुआ है, राइट, आपका 75% है, लेकिन मार्केट में कोई खरीदार भी नहीं है, तो क्या होगा? 100 रुपये का प्राइस है, शील से मुझे चाहिए पैसा, मुझे अभी के अभी, तो वो शायद थोड़ा पैसा कम कोट कर देंगे उसके अंदर, राइट। हो सकता है वो 99.95 कर दे, कोई बायर नहीं आ रहा है, तो क्या धीरे 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 बिकॉज ऑफ द ट्रेंड आउट देयर उनको देखते हो सकता है 4 लोग और खड़े हो जाएं, अरे 100 रुपये शेयर नहीं बिक रहा है, 99.95 पे नहीं बिक रहा है, तो बाइंग एंड सेलिंग का जो डिमांड सप्लाई गैप ऐसे क्रिएट होना शुरू हो जाता है, विच इज आर्टिफिशियल। उनको एग्जिट लेना है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल बिकॉज जस्ट फॉर एवरीबडीज रेफरेंस, एक शेयर ओनर से ऐसा कुछ नहीं होता है डिफरेंशिएशन, बट जस्ट टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, वहाँ पे एक मार्केट मेकर कॉन्सेप्ट रखा है कि वो मिनिमम लिक्विडिटी देगा, तो जो मार्केट मेकर रहेगा वो परचेस कर लेगा, वो बोलेगा मैं 99 में खरीदने के लिए रेडी हूँ, एंड शी इज ओके टू सेल द स्टॉक एट 90, मे बी शी इज ओके टू बेयर 1000 रुपीज़ का लॉस, एब्सोल्युटली फाइन, शी वॉन्ट्स टू टेक एन एग्जिट, तो वो एग्जिट दिला देंगे वहाँ पे। तो 25% मिनिमम डाइल्यूशन है, over and above 25%, 1.25%, which is 26.25% टोटल बनता है डाइल्यूशन, दैट गोज टू द मार्केट मेकर। वो मार्केट मेकर अपनी खुद की बुक्स में वो स्टॉक को ओन करेगा और बाइंग और सेलिंग कराएगा। ये क्यों मैंने आपको बताया, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी है कि नहीं है, हम स्टॉक लेके आएंगे लिस्ट कराने के लिए, कल को कोई स्टॉक खरीदने को नहीं रेडी रहा, कोई बेचने को नहीं रेडी, तो कैसे लिक्विडिटी मेंटेन होगी? वो ऐसे मेंटेन होती है। और आज तो आई एम श्योर इतना लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर कि मार्केट मेकर्स का अभी 2-2, 3-3 लोग बोल रहे हैं अप्लाई करने के लिए कि हमें एक्स्ट्रा स्टॉक दे दीजिए, दैट्स अ काइंड ऑफ डिमांड दैट इज बीइंग गोइंग ऑन इन द मार्केट, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू tell you guys. Rest everything in the presentation are just for knowledge sharing. ये एक छोटा सा स्लाइड हमारे लिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली शुड नॉट बी सेइंग ऑन द स्टेज, मॉनिटरली कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने रीएम्बर्समेंट्स दिया है आपके इशू एक्सपेंसेस के लिए, जो आप आईपीओ में एक्सपेंसेस करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिर्फ एक मेंशन किया था कि हम अपनी फर्स्ट 250 लिस्टेड कंपनीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, बट कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया था वहाँ पे। अनलाइक अदर स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे केरला अगर आप देखें तो 50% ऑफ द आईपीओ एक्सपेंसेस अप टू 1 करोड़ रुपी वो उन्होंने रियम्बर्स भी किया। ऐसे 9 स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट दिस विद अदर स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल, राइट। सो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, स्मॉल प्रोसेस ऑफ हाउ इट गेट्स डन। आई एम थ्रू विद माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पीसफुल टाइम. This is just a growth chart, and if anybody wants to connect with me, can connect. Please don't, my humble request, do not call for any stock related tips. मुझे खुद को भी नहीं पता है, मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ. So that's the one thing. Otherwise I've given my mobile number out here for your easy reference as well. Thank you so much for your time over here. Thank you. Thank you so much, sir. May I request you to be on stage? Yes, all the business owners had very keen interest. I could notice सबका चेहरा स्क्रीन पे लगा हुआ था और सब फोटो ही खींच रहे थे. So yes, it is definitely going to benefit anyways. May I request Sakhi Chandrayan to be on stage to felicitate Mr. Gagandeep Singh. We have a big round of applause for Mr. Gagandeep Singh. Thank you so much.